Wow, welcome, sir. Welcome to SS Podcast. Yeah, Thank you. Thank you, Sai. yeah, yeah. So coming on to myself, this is Aishar. So I basically completed my MPharm in pharmacognosy from Central University of Punjab and currently pursuing a PhD from NIPER Ahmedabad. And so coming on to today about our guest. So it's my pleasure to invite you, sir. This is Mr. Dr. Hisley. He did his MBBS and then he's completed his 3 years of training in general medicine as a DNP resident in Tata Motor Hospital, Jamshedpur. And he is popularly known as the hypercarnivore metabolic doctor. And it has been 5 years since he started managing patients with obesity, diabetes, hypertension, arthritis using low carb diet as an approach. And welcome, sir. Welcome to SS Podcast. Thank you, Sai. Thank you so much for your wonderful introduction. Yeah, sir. So I'm really excited to talk to you about this health and wellness podcast, like about these things. And I recently have seen your podcast too. It was really interesting, sir. Quite well, like how low carbs has been used as a diet and a Yes, therapy. right. Yeah. So just we just dive into the topic itself, sir. So my first Exactly. question would be like about like what are some misconceptions about diet and metabolism? As you see, so far I have seen many misconceptions. Like some would say eat banana in the morning, we must not eat fruits in the night, and some would say not to take protein powder as supplement. Some would say take protein powder as a supplement. So it's really confusing to see, and even with this advent of this YouTube, so many people has shared their opinion and. For me, it's really like a mess around and confusion to which to follow or which not to follow. So, what's according to you that these misconceptions nowadays occurring within the UK? Yes, yes. Yeah, So you want me to talk about most common misconception or something else? Because we have so many myths around, right? yeah. So So like me. like banana and these silly means actually questions. I can't means discuss about these things. The Yeah, thing is, most of the myths I have covered on my YouTube channel. So I yeah, have discussed those things in great detail actually. So yeah, people can watch those videos about those topics on my YouTube channel. They can subscribe to my channel also. So they yeah, will get to know what all yeah, those myths are and what are facts. So better they subscribe my YouTube channel. They will get to know more about these things. yeah, So when it comes to actually myths, so where does it arise from? We have to understand that thing first, because we have so many myths around food, nutrition, and exercise, right? So we should call it nutritional mythology or ideology, because these things, what you think about nutrition and food, are not actually science based, because there is no experimentation being done around those statements or anything that is related to nutrition, right? It's just prospective cohort study or epidemiology. So yeah, you know what epidemiology is. So the thing is, the experimentations are not being done actually, and we can't do also those kinds of experiments. So those myths are actually, first actually the problem is, first we need to realize why we are surrounded with these mountains of myths around nutrition and food, because somewhere we have been misled by our own education system. Right from your early childhood, you also know that we are taught about food pyramids, and that is absolute nonsense, because that includes that 60% of carbohydrate you have to take yeah, in your diet daily. So hence we are so ingrained with some set belief system in terms of nutrition, so where we are no longer able to appreciate the true science that is there with us in the form of anthropological studies, stable isotope testing, and archaeological findings also, and so many things like that actually, that almost entirely establish that we are kind of hyper carnivore as a species, yeah, right? So yeah, बेसिकली अपनी जो इवोल्यूशन की हिस्ट्री है ना, वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि वी आर मीट ईटर्स मेनली. So at large we eat meat, we have eaten meat actually. So we as human beings have been
have eaten mostly meat of ruminant mammals over millions of years. So throughout our entire existence on this planet, right up until this monocropping or agrarian revolution Right. actually came. Right. So the moment we started growing seeds, cereals, that cereals means rice and wheat, obviously, and grains includes so many other things like legumes and lentils. So eventually that became staple in our diet, है ना? So that actually wrecked our metabolism completely. So that is the problem. So we have very significant past history of meat eating, and this actually nobody can deny. So this is very evidence based and science based, because when you go to stable isotope analysis, na, what we do there, we do analysis of long bones, because collagen protein is there in long bones, and that collagen testing, that by using that radioisotope, stable isotope, that reflects that we have eaten meat mostly. So I won't go much detail about that, because people won't understand, won't get it also. So मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो ईटिंग है ना, वो मोस्टली मीट है, और उसको एक्चुअली हम एग्जैक्टली रेडियो आइसोटोप टेस्टिंग में देख पाते हैं, बिकॉज हमारे बोन्स में जो भी मीट की वजह से जो भी हमारे बोन्स का कॉम्पोजिशन रेडी तैयार होता है ना, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बिकॉज जब हम प्लांट्स खाएंगे तो हमारे जो बोन का कॉम्पोजिशन होगा वो कुछ और होगा, एनिमल्स में कुछ और होगा। और जो एनिमल्स में होता है, एनिमल्स को खाने से जो कोलेजन, जो बोन स्ट्रक्चर हमारा डेवलप होगा, वो हमें पता लगेगा कि ये एनिमल बेस्ड ईटिंग की वजह से ये बोन है तुम्हारा, और ये प्लांट बेस्ड ईटिंग की वजह से। तो हमारा जो आज से 20,000 ईयर्स पहले के जो हमारे जो लॉन्ग बोन्स के जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में जो हम आइसोटोप टेस्टिंग किए लॉन्ग बोन्स में, सो देयर वी फाउंड दैट इसमें हमारा एनिमल प्रोटीन का ही मोस्टली कंट्रीब्यूशन है इस बोन्स में। अभी क्योंकि बिकॉज वी आर ईटिंग नाउ मोस्टली सीरियल बेस्ड फूड, तो इसलिए अभी हम अगर आइसोटोप टेस्टिंग करते हैं उसी बोन्स की, आजकल के मॉडर्न ह्यूमंस की, तो वहां पे हमें प्लांट बेस्ड ईटिंग वहां पे मिलता है, राइट। तो हमें यही बताता है कि मोस्टली हमारा जो हिस्ट्री है वो मोस्टली मीट ईटिंग का ही है। हमारे पास ये सीरियल्स ग्रेन्स नहीं थे 10,000 पहले, सर है बट ना। कुछ लोग बोलते हैं कि मीट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम टू फॉर डाइजेशन, तो या सो व्हाट्स ये रॉन्ग विद हेल्थ के दैट। लिए ये या हेल्थ के लिए बिकॉज खराब या है। तो मीट को टाइम लगता है डेफिनेटली डाइजेस्ट होने में, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। अगर टाइम लग रहा है, दैट एक्चुअली दैट इज गुड फॉर अस, बिकॉज दैट विल कीप यू सेशिएटेड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यू वोंट go and grab some crappy or carby things, means carbohydrate things or junk food, because what you are supposed to do, you have to suppress your hunger for longer period of time. This is our prime motto, because when you go to fat loss journey, what dietitian will say usually, they will say ki just take anything that suppress your hunger, है ना। Because black coffee, what are they doing? Because black coffee is little bit of doing that kind of thing, सप्रेस कर रहा है हंगर को। और बेसिकली हंगर को सप्रेस करने का मकसद ये है कि बिकॉज आप अपने फ्रीक्वेंसी को डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डिक्रीज, यू वोंट ईट 6 to 8 मील्स पर डे, है ना। तो अगर इफ यू आर टेकिंग सम फूड दैट हेल्प्स यू ब्लंट योर हंगर, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। सो ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे गट में अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो वो गट के लिए डैमेजिंग है, राइट। ये सब मिथ्स है, वही मैं कह रहा हूँ। तो इवन मैं एक्चुअली इवन आई एम मीन्स टेकिंग 1 meal a day for most of the days, not even 2 meals, just 1 meal a day, that's around 3 to 4 p.m, first and last meal, that's it, nothing else. And that meal constitutes mostly meat and eggs, that's it, nothing else. और आप ये बोलो कि लो कार्ब डाइट इज गुड, बट बेसिकली इन साउथ इंडिया वी पीपल यूज टू ईट 2 times ओनली राइस. We even don't eat like what do you say, like roti or everything. So that's totally becomes totally carbohydrate diet.
So what's Yeah. your opinion on this? So you have to see now, because people who are taking carbohydrate, they are not taking 1 or 2 meal, and they Yeah, can't do that also, है yeah, ना? so Because that, they are yeah, hungry all day long. yeah, Those people actually. yeah, So they have to take something in between yeah, the major meals actually. yeah, So they do take, because they take tea along with biscuits and yeah, rusk and all that. yeah, So, and they justify those things. They don't yeah. have any problem taking those things, but they think that meat is bad for us. I don't know why they think like that. And का एक और सवाल था कि sir, I have seen your post too because you had been, I guess, been into bodybuilding, right? Like you go gym regularly. I feel so seeing after your body. And later, when I have seen some like videos or something, I recently started going to gym. Like 2 months, it has been 2 months. And I had Yeah. been a lot of confusion watching these videos. Like some say, go for a mixed workout, don't go into a single part. So तो Hmm. आपका ओपिनियन क्या Yes. है कि मुझे मिक्स वर्कआउट करना चाहिए कि या लाइक ये पार्ट ए डे लाइक चेस्ट ए डे देन हैंड लाइक यार, ट्राइसेप्स बाइसेप्स हाँ, मीन्स अगर what I believe कि if you are training ना, because the exercise and training is different. So हमें पहले तो ये समझना है कि exercise क्या है and training क्या है ना? क्योंकि most of the people actually don't understand what is exercise and what is training. या तो exercise जो है हमारा वो, because it can be anything like walking, jogging, या या and what you do on daily basis actually those comes under exercise, या है ना? जैसे household work हो गया हमारा, या वो एक्सरसाइज में आता है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी वो एक्सरसाइज हो सकता है, बट नॉट नेसेसरीली वो ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग तभी होगा जब हम अपनी बॉडी को स्ट्रेस आउट करते हैं पूरी तरह से या एंड एग्जॉस्ट करते हैं या एंड ओवरऑल होल बॉडी को करेंगे टॉर्चर, या वो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। और मोस्ट ऑफ दी जो प्रॉब्लम है ट्रेनिंग प्रोग्राम का, वो आइसोलेशन मूवमेंट वाले प्लान को मैक्सिमली लोग जो जितने भी हेल्थ कोचेज हैं, फिटनेस ट्रेनर्स हैं, वो लोग एडवोकेट करते हैं, लाइक बाइसेप्स आइसोलेशन मूवमेंट, ट्राइसेप्स, शोल्डर। तो वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप मिक्स्ड वर्कआउट करो। मिक्स्ड वर्कआउट मेरे कहने का मतलब है ना कि वेयर यू आर एंगेजिंग योर बॉडी पार्ट्स एज अ होल, या लाइक अपर बॉडी ऑल्सो, लोअर बॉडी ऑल्सो। तो मिक्स्ड वर्कआउट मेरा कहने का वो मतलब होता है कि जहाँ पे हम some parts of upper body we will do and some parts of lower body like hamstring or quads or anything major muscle group. So that includes those activities, those muscle group, because you have to engage your multiple joints along with different muscle groups in those exercise, because if you engage upper body and lower body, then you are engaging multiple joints and different muscle groups at the same time, या है ना, in same session. So उसके साथ क्या हो रहा है कि हमारा बहुत सारे मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, सर्कुलेशन वगैरह वो सब भी प्रॉपर हो रहा है हमारा, और मल्टीपल जॉइंट्स इफेक्ट, मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो बॉडी है ना एज अ होल टारगेट हो रही है। या और स्ट्रेंथ बिल्डअप तभी होता है जब हम मल्टीपल जॉइंट्स वाले एक्सरसाइज को ज्यादा से ज्यादा करते हैं, जैसे डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट्स हो गया, इवन बेंच प्रेस हो गया, और बेंच प्रेस में इवन डंबल प्रेस भी कर सकते हैं चेस्ट के लिए जो करते हैं। तो ये सारे वर्कआउट में क्या हो रहा है ना कि हम टारगेट कर रहे हैं मल्टीपल जॉइंट्स को, और कम समय में हम बेसिकली ज्यादा से ज्यादा हम बेनिफिट को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम बाइसेप्स करते हैं ना, मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट आई एम सीइंग इन द जिम आल्सो, कि वो क्या कर रहे हैं जिम में, बाइसेप्स कर रहे हैं तो आधे घंटे 1 घंटा बाइसेप्स ही कर रहे हैं बस, हाँ या है ना। और बाइसेप्स इज सच ए स्मॉल मसल ग्रुप, उसमें हमें ज्यादा ट्रेन नहीं करना उसको, क्योंकि ट्रेन हमें उस मसल ग्रुप को ज्यादा देर के लिए करना है जो एक्चुअली बड़ा है साइज में, और वही बड़ा होगा तो हमारे मसल मास को बढ़ाएगा, और with age actually that will help us getting means healthier also, that will maintain our health also in long term. तो उसमें हमें टारगेट ये करना है कि हमारा जो बिगर मसल ग्रुप है, जैसे बैक है, लैटिसिमस डॉर्साई हो गया, उसमें चेस्ट हो गया, और हैमस्ट्रिंग हो गया, क्वाड्स हो गया लोअर बॉडी का। तो अगर हम उस मसल ग्रुप को ट्रेन करेंगे तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड बेटर करेगी ओवरऑल मसल ग्रोथ में। क्योंकि स्मॉल मसल ग्रुप को हम कितना भी करेंगे ना, तो हमारी बॉडी एग्जॉस्ट नहीं हो सकती उस तरह के तरीके से,
जिस तरीके से हमारे लार्ज मसल ग्रुप को, क्योंकि लार्ज मसल ग्रुप को हिट करने के लिए हमारी इंटेंसिटी को, हम अपनी इंटेंसिटी को अगर बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो और वो जो सब कुछ है सर्कुलेशन ज्यादा एनहांस होगा उससे, राइट। हमें खुद फील करना है कि हम बाइसेप्स कितना भी इंटेंस कर लें, क्या हम अपने खुद को फटीग कभी कर पाएंगे स्मॉल मसल ग्रुप को हिट करके? पूरी बॉडी को हम फटीग कर पाएंगे कभी भी? आई डोंट थिंक सो, है ना। Right. तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो दोनों बॉडी को, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी, यू शुड एंगेज एट द सेम टाइम, मतलब इन द सेम सेशन, नॉट एट द सेम टाइम। तो जैसे मेरा जो स्प्लिट है, तो स्प्लिट कहने का मतलब होता है ना कि आप कितने मसल ग्रुप को ट्रेन कर रहे हो सेम सेशन में। तो Yeah. मेरा स्प्लिट यूजुअली 3 मसल ग्रुप का स्प्लिट होता है। जैसे अपर बॉडी में मैं चेस्ट बैक दोनों साथ में ही करता हूँ, Okay. और उसके बाद मैं एक डेडलिफ्ट का सेशन लगाऊंगा। तो डेडलिफ्ट, इफ आई एम डूइंग डेडलिफ्ट देन आई एम एंगेजिंग माई लोअर बॉडी ऑल्सो। Yeah. और चेस्ट एंड बैक कर ही रहा हूँ तो अपर बॉडी एंगेज हो गया मेरा। Yeah. और चेस्ट एंड बैक करते हैं ना, तो यू आर नॉट एंगेजिंग जस्ट अपर बॉडी लाइक चेस्ट एंड बैक, यू आर एंगेजिंग योर डेल्टोइड ऑल्सो, Yeah. है ना। तो आप कहीं ना कहीं टारगेट कर तो रहे हो एक सिंगल मसल ग्रुप को, लेकिन वो कहीं ना कहीं हर मसल को टारगेट कर रहा है, और ये अच्छा है एक्चुअली। और इससे क्या होगा कि जब हम पूरी तरीके से एग्जॉस्ट करते हैं अपनी बॉडी को, तो हमें कहीं ना कहीं नेक्स्ट डे वर्कआउट नहीं करना होता है, फिर जरूरत नहीं होती है। एंड यू शुड नॉट डू दैट ऑल्सो, बिकॉज आपने कर लिया, आज काफी हाई इंटेंसिटी में किया, तो आपको एक रेस्ट चाहिए नेक्स्ट डे रिकवरी के लिए। और क्योंकि आपने मोस्ट ऑफ द मसल ग्रुप को एक सेशन में कंप्लीट कर लिया, तो आप जब एक दिन का रेस्ट लोगे तो सेकेंड डे फिर आप डिफरेंट मसल ग्रुप के साथ आप उसी पैटर्न पे करोगे ट्रेन, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। क्योंकि अपर बॉडी में आपके पास शोल्डर अभी रह गया था, ट्रैप्स रह गया था, है ना। और लोअर बॉडी में अगर आप डेडलिफ्ट किए थे, अब हैमस्ट्रिंग आप कुछ कर सकते हो शोल्डर के साथ। मतलब मैं अपनी ट्रेनिंग स्प्लिट बता रहा हूँ, मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ, क्योंकि पैटर्न हमारा वही होना चाहिए। आइसोलेशन मूवमेंट ऐसा नहीं है कि आज हम जा रहे हैं और सिर्फ बाइसेप्स करके आ जाएंगे या ट्राइसेप्स करके आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं, मोस्टली ऐसे ही लोग हैं। हाँ वैसे ही करते हैं। हाँ, तो ट्रेनिंग का मतलब है ना कि हम वी आर पुशिंग बियॉन्ड द लिमिट्स। कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि वो जो इंटेंसिटी होगी ना, वो मैक्सिमल इंटेंसिटी होगी अपने, जो भी अपनी इंटेंसिटी है, जो भी अपनी कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो वो उस इंटेंसिटी तक जब तक हम पुश नहीं करेंगे खुद को, तो उसके बाद जो, क्योंकि जब हम ट्रेन कर रहे होते हैं ना, तो बेनिफिट हमें उससे नहीं मिल रहा होता एक्सरसाइज का, है ना। द बेनिफिट्स वी गेट फ्रॉम ट्रेनिंग एक्चुअली और एक्सरसाइज डोंट कम व्हेन वी डू ऑन द जिम फ्लोर, है ना, और एनीवेयर, मींस लाइक ग्राउंड और एनीवेयर, I mean to say. So rather it's when we recover from that damage or torture we were subjected to during our training session, है ना। तो हम रिकवर कब करेंगे? जब हम रेस्ट लेंगे नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे हमें रेस्ट लेना है। तो आज अगर हम अपर बॉडी लोअर बॉडी को एंगेज करके एक सेशन हमने डबल मसल या 3 मसल ग्रुप का स्प्लिट किया है, तो हम नेक्स्ट डे रेस्ट लेंगे और फिर हम ऑल्टरनेट डे पे जाएंगे, एवरी अदर डे हम वर्कआउट करेंगे। तो मेरा पर्सनली वीक में 3 सेशन होता है वर्कआउट का, और सिर्फ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में करता हूँ, कार्डियो नहीं करता हूँ कभी। कार्डियो पे मैं बहुत अच्छे से ग्रेट डिटेल में कभी मैं एक्सप्लेन करूंगा लोगों को कि वाई वी शुडंट डू कार्डियो, वी शुड नॉट डू एक्चुअली कार्डियो। अगर आप मैराथन एथलीट हो, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग वाले एथलीट हो, तो आप करो, क्योंकि वो स्पोर्ट आपको डिमांड कर रहा है उस एक्टिविटी के लिए। लेकिन अगर आप रेगुलर पर्सन हो, एक एवरेज इंडिविजुअल हो जो अपने हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हो, देन डोंट डू इट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, है ना। तो मेरा कहने का मतलब था मिक्स्ड वर्कआउट हमेशा ही सही है। अगर आप बिगनर हो तो भी आप मिक्स वर्कआउट करो, कोशिश करो कि मोस्ट ऑफ द मूवमेंट आपका कंपाउंड मूवमेंट हो। जैसे इवन हम शोल्डर भी अगर हम प्रेस करते हैं, तो आप खड़े होकर कर सकते हो शोल्डर प्रेस, बारबल से करो या डंबल से करो, है ना। तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपकी लोअर बॉडी इंगेज होती है, अगर आप हेवी शोल्डर प्रेस ऐसे करके करते हो डंबल से या फिर बारबल से। तो बहुत सारे मूवमेंट हैं, ये सब को आप कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज करोगे अपने ट्रेनिंग में, तो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। और आपको बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, डेली बेसिस पे जिम जाना है, 2-2 घंटे बिताने हैं जिम में, इतना नहीं करना होता है। हालांकि मैंने भी बहुत टाइम दिया है जिम में पहले, क्योंकि मुझे भी कोई बताया नहीं था, मुझे भी आइडिया नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मैं चीज़ों को जैसे जैसे सीखा, मुझे समझ आया कि एक्चुअली हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम करना चाहिए वर्कआउट। और वर्कआउट
करके हमें रेस्ट लेना चाहिए और अच्छी डाइट लेनी चाहिए। क्योंकि आप यंग एज में गलत टेक्निक पे भी आप बॉडी बिल्डिंग कर लोगे, मसल बिल्डिंग हो जाएगा, बट इट्स डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट। उस पैटर्न पे आप मेंटेन नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो इसलिए एक्चुअल चीजों को समझना बहुत जरूरी है मेंटेनेंस के लिए। आप वही मेंटेनेंस के लिए बात किया, तो रेस्ट के लिए भी कुछ कंफ्यूजन है यहाँ की। कुछ व्हेन आई सी सम वीडियोस की बोलते हैं कि यार 4 घंटे की स्लीप इज नेसेसरी एंड इट इज ओके इफ यू हैव ए गुड एंड साउंड स्लीप फॉर 4 hours, बट सम वुड से लाइक यू हैव टू गो फॉर 7 to 8 hours. So what's your opinion on this? यार जहाँ तक इसकी बात है ना, मतलब रेस्ट की बात है, तो उसमें सिर्फ स्लीप नहीं आता है, उसमें ये भी आता है कि आप रेस्ट के साथ, स्लीप के साथ आप और क्या क्या चीजें कर रहे हो जो आपके कहीं ना कहीं फिजिकली डिमांडिंग है। जैसे आप कहीं बाहर जाने वाला आपका काम है, जॉब प्रोफाइल कुछ ऐसा है कि आप दिन भर बाइक पे रहते हो, बाहर रहते Right. हो, जर्नी पे रहते हो, तो वो सब भी आपको यू हैव टू फैक्टर इन दोज थिंग्स, है ना। तो उसमें क्या होगा कि आप अगर सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं स्लीप मैंने ले ली 7 से 8 घंटे की तो मेरा काम हो गया, वैसे नहीं हो पाता है। कई बार हमारा काम भी इतना ज्यादा एग्जॉस्टिव होता है, इवन मेंटली, जॉब प्रोफाइल सबका इतना है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, तो उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं रेस्टफुल आप ले तो रहे हो 7 से 8 घंटे की स्लीप, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है कि आप कितनी देर डीप स्लीप में जा रहे हो। आपका जो रेम स्लीप है एक फेज होता है, तो ये सारी जो स्लीप होती है ना वो रिस्टोरेटिव फेज होती है स्लीप की। इसमें आप बेसिकली अपनी बॉडी को हील कर रहे होते हो, ब्रेन को भी आप कहीं ना कहीं बेटर वे में डिटॉक्सिफाई कर रहे होते हो। तो अगर क्वांटिटी अगर हम देख रहे हैं 7 to 8 hours, तो उसकी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस क्वालिटी हम देख नहीं पा रहे उस क्वांटिटी में। तो मैक्सिमम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि 7 to 8 hours तो सो ही ले रहे हैं, बट Question more. So some may say like morning workout is good, and some may say like evening workout is good. Like some would say like some even have seen people doing workout like 8 p.m. in the night or around 9 p.m. and some would do in the mornings like 4 to 5, 6, 7. So what would be the better option according to you? यार आई थिंक कि मुझे लगता है कोई स्पेसिफिक टाइम तो नहीं होता ऐसा कुछ कि मैं स्पॉट ऑन एक टाइम बता दूं और यू शुड डू एट दैट टाइम ओनली। बट मुझे ऐसा लगता है कि डे टाइम बेटर है in terms Yeah, of everything, because you are mostly awake and your cortisol level is also high. So right, somehow na, because you have to follow your circadian rhythm also, you right, have to take that factor in, because when you are awake in the morning time your cortisol level is high. And cortisol, what cortisol is doing actually, that gets you awake and right, helps you awake, है ना। right, तो at that time you can do that much better way, in a much better way। तो कॉर्टिसोल लेवल हमारा मैक्सिमम है उस समय, और उसमें अगर हम खुद को अगर कुछ पुश करते हैं किसी वर्कआउट में, देन डेफिनेटली वो लेवरेज हम ले पाएंगे वहां पे बेटर। और ये डे टाइम, मेरा कहने का मतलब है ना, ये इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन मॉर्निंग टू मीन्स आफ्टरनून, बिटवीन 8 AM और इवन 7 AM, वट एवर मीन्स, इट डिपेंड्स ऑन व्हेन यू वेक अप। तो वो 2 PM से 3 PM तक हो सकता है। आफ्टर 3 PM व्हाट हैपेंस कि योर कॉर्टिसोल लेवल गोज डाउन। yeah, तो सन जैसे जैसे हमारा, मतलब डस्ट की तरफ हम जाएंगे जैसे जैसे, वैसे वैसे हमारा कॉर्टिसोल लेवल भी डाउन होगा। और एक मॉलिक्यूल होता है एडेनोसिन। तो right, एडेनोसिन क्या करता है, एडेनोसिन एक्चुअली मॉर्निंग में हमारा कम होता है। yeah, और एडेनोसिन एक्चुअली एक ऐसा केमिकल है, सब्सटेंस है, जो बेसिकली एटीपी के ब्रेकडाउन के बाद हमारी बॉडी में आ रहा होता है। yeah, अब एटीपी का ब्रेकडाउन कब होगा, जब हम ज्यादा एक्टिव होंगे। yeah, मॉर्निंग में जैसे ही हम उठते हैं, एटीपी का ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी काइंड ऑफ उस समय बहुत ज्यादा इनएक्टिव मोड में होती है। पूरे नाइट आवर्स, हमारा बेड टाइम के समय में हम इनएक्टिव थे ऑलमोस्ट। तो उस समय क्या होगा ना, एडेनोसिन का लेवल हमारा मॉर्निंग में कम रहता है, मिनिमम रहता है। yeah, तो उस वजह से क्या होगा, हमें नींद नहीं आएगी उस तरह से, क्योंकि एडेनोसिन अगर ज्यादा होगा तो हमें स्लीप आएगा, स्लीप इंड्यूस होगा बेसिकली। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए फेवरेबल है मॉर्निंग टाइम,
क्योंकि अगर एडेनोसिन बढ़ता है, जैसे शाम आते आते तक एडेनोसिन बढ़ता है, और वो सनसेट का टाइमिंग भी ऐसा है हमारा कि उस समय कोर्टिसोल भी डाउन होता है। तो हमें ये कहीं ना कहीं देखना है कि हमारा जो सर्कैडियन रिदम है वो हमारे हेल्थ के लिए हमें उसको ही फॉलो करना है। अगर हम उसके अगेंस्ट जाएंगे तो डेफिनेटली आवर बॉडी विल कॉम्प्रोमाइज, है ना। तो अब एडेनोसिन क्योंकि हमारा इवनिंग में बढ़ने लगेगा, तो हमें इन जनरल भी, जैसे हम काम से आते हैं ना, तो घर पे आते हैं तो लगता है कि आराम करें, ऐसा नींद भी आ भी जाती है। अगर हम बहुत थके भी रहेंगे तो दिन में इतनी आसानी से नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि एडेनोसिन हमारा बहुत लो है, कोर्टिसोल हाई रहता है। तो अगर हम उस पैटर्न को फॉलो करें, उस सर्कैडियन रिदम को कंसिडर करें, देन डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है डे टाइम बेटर होगा। और अभी क्योंकि सभी का जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि सम पीपल आर आल्सो मींस नाइट शिफ्ट वर्कर्स, आल्सो नाइट एंड डे शिफ्ट वर्कर्स, तो उनका सर्कैडियन रिदम हमें नहीं पता किस तरह से रह रहा है। तो एक्चुअली उनके लिए कुछ भी कहना एडवाइजेबल ये नहीं होगा कि आप नाइट में ही करो या इवनिंग में ही करो या डे में ही करो, क्योंकि उनका सर्कैडियन रिदम एंटायरली ऑपोजिट हो जाता है 1 वीक के बाद या 2 वीक्स के बाद। तो मेरे हिसाब से उनके लिए ये बेहतर एडवाइस है कि आपको जब टाइम मिले आप कर लो। लेकिन बट इन जनरल मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर एक प्रॉपर एक सर्कैडियन रिदम को फॉलो करते हो, डे लाइट क्यूज को ध्यान में रखते हुए, अगर आपकी लाइफ है, सब कुछ फिक्स्ड है, कुछ डिस्टरबेंस नहीं है आपकी लाइफ में, देन मुझे ऐसा लगता है डे टाइम बेटर होता है। इवनिंग टाइम में कई बार ऐसा भी होता है कि आप अगर इंटेंस वर्कआउट करते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल तो जाएगा ऊपर वर्कआउट की वजह से, तो कॉर्टिसोल लेवल आप उस समय हाई करते हो। और समटाइम्स क्या होता है कि इट डिस्टर्ब्स योर स्लीप ऑल्सो व्हेन यू डू वेरी हेवी वर्कआउट ड्यूरिंग इवनिंग, इन द इवनिंग टाइम, देन समटाइम्स इट माइट अफेक्ट योर स्लीप। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आप इवनिंग के टाइम पर आते आते आप अपनी एक्टिविटी से जितना होना चाहिए आप एडेनोसिन को लेवल अप कर दो। बिकॉज अगर हम डे टाइम में हम मैक्सिमम एक्टिविटी को कर लेंगे तो मोस्ट ऑफ द एडेनोसिन हमारा लगभग बेड टाइम के पास आ जाएगा, ठीक ठाक अमाउंट में लेवल हाई हो जाएगा, और देन हमें नींद भी आ जाएगी आराम से। तो अगर आप पूरे दिन इनएक्टिव रहे हो और नाइट टाइम में वर्कआउट अगर कर पा रहे हो, तब तो डेफिनेटली आप करो। वो ऑप्शन तो है ही आपके पास ना, आप तो कभी भी कर सकते हो। बिकॉज वी आर सो सिक नाउ एक्चुअली एज अ सोसाइटी कि आपको वर्कआउट कभी भी कर लेना चाहिए। अब तो ये हालत है बिकॉज वी आर सो सीडेंटरी, है ना। तो मेरा यही कहना है कि आप अगर फ्री हो, अगर आप डे में कर सकते हो तो बेटर होगा आप डे टाइम में करो। और अगर आपको टाइम है तो आप, बिल्कुल टाइम नहीं है डे टाइम में, तो आप इवनिंग में भी कर सकते हो। लेकिन सर्कैडियन रिदम को ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से डे टाइम बेटर होता है। ये मेरा ओपिनियन है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आप उसको मान लो या फिर कुछ भी है। ये मेरा पर्सनल मतलब, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ना बायोलॉजी को फॉलो करता हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक भी है ना। और उस रिदम को, उस पैटर्न को हमें कहीं ना कहीं तो ध्यान में रखना है, वो साइंटिफिक है काफी। तो उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए कोई भी रात में, इन जनरल भी अगर हम सोचे ना, इवोल्यूशन वाइज भी, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में भी हम अगर देखते हैं इस चीज को, तो हम रात में तो कभी बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं करते थे ना। जो भी एक्टिविटी होती थी यूजुअली हम डे टाइम में ही करते थे, चाहे वो हंटिंग हो गया या रोमिंग हो गया, हियर एंड देयर, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं तो वो डे टाइम में करते थे। इवन फूड से रिलेटेड कुछ अगर हम कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली डे टाइम में हो जाता था। हम क्यों कहते हैं हमें मतलब डस्क से पहले हमें खा लेना चाहिए, सनसेट के पहले खा लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट नहीं थी हमारे उस समय में। तो जब अभी तो हम लोग कहीं भी लाइट लेकर के हम कुछ भी देख सकते हैं, खा सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं। उस समय हम टोटली डिपेंडेंट थे सनलाइट पे। और जब हमारे पास लाइट नहीं होता था तो हमें कहीं ना कहीं इस बात को समझना था कि अब रात हो गई तो अब नहीं खाएंगे, कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ भी उल्टा पुल्टा भी हमें जा सकता है हमारे खाने में। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ना ये एक्चुअली इस चीज को थियोराइज किया गया है कि हमें सनसेट के बाद नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सनसेट के बाद अगर खा लोगे तो कुछ ऐसा कुछ मैसिव कुछ हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। बट आइडियली क्योंकि हमारी बॉडी यूज टू है उस तरह से, क्योंकि इवोल्यूशन का जो हिस्ट्री है ना हमारा, वो हमें बहुत कुछ बताता है। वो अलग बात है कि हम उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है, भूल जाते हैं। स्कूल टाइम में डार्विनियन थ्योरी जो था, ये सब सब कुछ था ह्यूमन इवोल्यूशन पे, हमें बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं कराया गया उस वो सब सारे चैप्टर्स पे। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन सिस्टम का ही फॉल्ट है कि जो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, हमारी हेल्थ के लिए, उस पर फोकस नहीं किया जाता है एजुकेशन सिस्टम में।
और यही प्रॉब्लम है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो डे एंड नाइट का क्यूज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हालांकि मैं भी नहीं कर पाता हूँ बहुत फॉलो बहुत ज्यादा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि काम के सिलसिले में मुझे भी लैपटॉप पे मोबाइल पे रहना पड़ता है कंटेंट क्रिएशन को लेकर के। बट जितना हो सकता है आपको फॉलो करना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी स्लीप खराब तो नहीं हो रही, आपकी स्लीप क्वालिटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको टाइम है, जैसे मुझे क्या है, मुझे कहीं जाना नहीं है काम के लिए, तो मैं खुद का ही सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ बंदा, ठीक है। Yeah. तो घर पे ही रहता हूँ, घर से ही सारे काम करता हूँ, मोस्टली कंटेंट क्रिएशन का ही काम करता हूँ। तो इवन पेशेंट को रीच आउट भी, पब्लिक को रीच आउट, ऑडियंस को रीच आउट कर पाता हूँ अपने कंटेंट क्रिएशन के थ्रू। तो मुझे उठना नहीं होता सुबह, ये नहीं है कि मुझे कहीं जा करके ये बायोमेट्रिक्स लगानी है ना, तो अटेंडेंस देनी है। तो इवन मैं 9 o'clock 9:30 तक भी सोया रह जाता हूँ। तो उस तरीके से ना मैं कॉम्पनसेट कर लेता हूँ स्लीप को। तो हालांकि आइडियल आप अगर सोचोगे तो आइडियल उस तरीके से बहुत मुश्किल है जीना इस तरह के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। लेकिन जितना हो सकता है आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कुछ भी करो, आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आप अपने जॉब को देखते हुए, अपने वर्क प्रोफाइल को देखते हुए आप कोई भी काम करो। और सूटेबल हमेशा वही होगा, वो मैं करूं या कोई ना करे वो अलग बात है। मैं भी नहीं करता हूं उस तरीके से जो सब कुछ आइडियल है, बट मैं बताऊंगा वही जो आइडियल है। तो मेरे हिसाब से डे नाइट सर्कैडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। और साथ में अगर डाइट आपकी खराब है तो और भी वो डबल वैमी इफेक्ट आपको मिलता है एज अ साइड इफेक्ट। क्योंकि डाइट भी गड़बड़, ये सब भी क्यूज आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ तो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी फिर। तो डे टाइम मेरे हिसाब से बेस्ट होगा अगर आप कर सकते हो तो। और टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल डे में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग काम पे चले जाते हैं, तो आप इवनिंग में भी कर सकते हो। नाइस। थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि हमने तो बहुत डिस्कस किया है अराउंड लाइक लो कार्ब डाइट की इम्पोर्टेंस क्या होता है, एंड मीट ईटिंग, एंड प्रोटीन इंटेक कैसा होना चाहिए, और मिक्स वर्कआउट, and the difference between this mixed workout and onto a particular training and exercise difference हमने देखा यस। है। और अबाउट स्लीप पैटर्न के लिए हिसाब से भी देखा है हमने कि कितने घंटे सोना चाहिए और क्या क्या है। तो आपसे बात करके और मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड एंड आई जस्ट हैव दिस लास्ट क्वेश्चन। तो uh, आप खुद कंटेंट क्रिएट करते हो, यूट्यूब खुद का एक यूट्यूब चैनल है। आई जस्ट वांट टू नो कि how can I improve my channel? Oh, your यार opinion. मुझे ऐसा लगता है ना कि इवन आई कांट गाइड यू मच इन दिस रिगार्ड, बिकॉज इवन आई एम मीन्स काइंड ऑफ न्यू बिगनर ओनली, है ना। तो बस मैं यही बता सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पे ग्रो Yeah, करने के लिए। yeah, आपका कंटेंट अगर इंगेजिंग होगा, इंटरेस्टिंग होगा, तो पब्लिक देखेगी डेफिनेटली। yeah, बट अगर आप थोड़े भी इनकंसिस्टेंट होते हो ना कंटेंट पुटअप करने में अपने चैनल पे, तो वो सीवियरली इफेक्ट करता है आपके चैनल को, मतलब काफी नेगेटिव आपको ले जाता है। yeah, और मैंने अपने चैनल के साथ भी देखा है, और ये होता है। और इसलिए मैं अब चाहता नहीं हूँ कि मैं इरेगुलर हूँ अपने चैनल पे। तो क्योंकि मेरे पास बहुत अभी एक्सपीरियंस नहीं है इस सोशल मीडिया का, और इसमें कैसे ग्रो करते हैं, क्योंकि मैं भी नया हूँ, मैं भी खुद ग्रो करना चाह रहा हूँ। और इसलिए मैं, मेरे पास जितने भी इनवाइट आते हैं ना, मैं कभी ना नहीं करता हूँ किसी को। yeah, और शायद मैं कभी करूंगा भी नहीं। और मैं शायद इन सारी चीज़ों के लिए जो अवेयरनेस रिलेटेड जो इशू है, हेल्थ रिलेटेड इशू है, मैं नहीं चाहता कि मैं इसके लिए इवन किसी बिगनर को कभी मैं चार्ज करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं चार्ज ना करूं, क्योंकि अनलेस अनटिल वो उसके साथ मेरा कभी पंगा ना हुआ हो तो, है ना। तो तो मैं यही चाहता हूँ कि इस चीज़ को मैं फ्री में एक अवेयरनेस क्रिएट करूं, एक काइंड ऑफ एक प्रोग्राम की तरह, अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह, जो भी हमारा सेशन है, डिस्कशन है, पॉडकास्ट है, वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह हो। और उसके बाद अगर किसी को लगता है कि पर्सनल मेडिकल एडवाइस मुझसे लेनी है, तो डेफिनेटली वो आ सकता है। लेकिन इस चीज के लिए मैं, कोई अगर मुझे इनवाइट करे, तो मैं तो ये समझता हूँ कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास एटलीस्ट लोग आ रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं, मुझे चाह रहे हैं कि मतलब कि आप बेसिकली आप अपना एक इनपुट दो किसी एक yeah, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे, टॉपिक्स पे। तो आई एम रियली थैंकफुल ऑल्सो एंड टू यू। तो मेरे हिसाब से कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। आप अगर बहुत खराब कंटेंट भी बना रहे हो, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि आप
अपने कंटेंट्स को बनाओगे अपने तरीके से ही, yeah, और आप ये सोचोगे कि कोई और आकर के आपको जज करे कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि हर का थीम अलग है, टॉपिक अलग है। yeah, मेरा थीम है हेल्थ है डेफिनेटली, और फिटनेस है, न्यूट्रिशन है, बट डिलीवरी का जो तरीका है ना वो अलग अलग हो सकता है। yeah, मेरी डिलीवरी का तरीका भी अलग है। जरूरी नहीं है कि हम किसी एक पैटर्न को फॉलो करें। हालांकि जो ट्रेंडिंग चीजें हैं ना उसको हम फॉलो कर सकते हैं, बट आपको ये भी देखना होगा एट द सेम टाइम कि आप जो काम कर रहे हो, क्या वो ट्रेंडिंग चीजों को करके आप सक्सेसफुल हो पाओगे। मुझे नहीं लगता कि मैं इस लो कार्ब वाली चीजों को अगर कन्वेंशनल मैनर में अगर मैं प्रेजेंट करूं अपने चैनल पे, सोशल मीडिया पे, तो इसको बहुत ज्यादा लोग ध्यान से सुनेंगे। कहीं ना कहीं एंगेजिंग करने के लिए ना आपको कुछ ना कुछ बिहेवियर में ऐसा कुछ, वो एक मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्रूटल जो होता है ना, एक एब्सर्ड टाइप का, जहाँ पे एब्रेसिव आप हो जाते हो थोड़ा, yeah, तो वो लाना पड़ता है, और वो कैरेक्टर में लाता हूँ। तो जो भी मैं ऑनलाइन प्रेजेंट करता हूँ ना, मैं बेसिकली वैसा हूँ नहीं, मुझे लाना पड़ता है एंगेजिंग बनाने के लिए पोस्ट को, है ना। अगर वैसा होता तो मैं इस तरह से किसी का इनवाइट को एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि मेरे पोस्ट एंगेजिंग हो, एटलीस्ट पीपल शुड एक्चुअली, आई वांट पीपल टू नो अबाउट मी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिलीवर, है ना, थ्रू माई कॉन्टेंट्स। तो उसमें मुझे गाली भी पड़ जाती है बहुत ज्यादा, बट एक्चुअली एंगेजमेंट भी मिलता है। तो मुझे बस अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही ध्यान देना है। मुझे कौन लोग गाली दे रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, वो गाली देता है मैं भी दे देता हूँ, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पोस्ट एंगेज बस रहे, मेरा पर्पस यही है सोशल मीडिया पे। और तुम्हारा जो चैनल है उसमें तुम डिफरेंट डिफरेंट एक गेस्ट को बुला सकते हो, यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी। और वो अपने अपने चीजों को में, अपने फील्ड में जो एक्सपर्टीज है, जिनका अपना एक एक्सपर्टीज है ना, वो शेयर करेंगे एक्सपीरियंस को। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और मुझे ऐसा लगता है ना पॉडकास्ट वाला चीज अभी बहुत ट्रेंडिंग है और बहुत ज्यादा लोग लाइक कर रहे हैं। बिकॉज इसमें क्या होता है ना, हमारा सेशन इंटरैक्टिव होता है, एंड पीपल एक्चुअली कनेक्ट विथ कनेक्ट विथ अस बेटर, इन अ बेटर वे एक्चुअली। क्योंकि अगर मेरा एक, जैसे मैं भी यूट्यूब पे कंटेंट बनाता हूँ, और इंडिविजुअल अगर मेरा कोई टॉपिक होता है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा लोग आते नहीं है देखने मेरे कंटेंट को, उनको ऐसा लगता है ये साइंटिफिक चीजें ही बात करता है। अब सेम चीज को मैं प्रेजेंट करूंगा जहां पे मुझसे अगर मेरा होस्ट है वो मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, और मैं उसी चीज को रिप्लाई कर रहा हूँ, तो ये एक काइंड ऑफ डिस्कशन हो जाता है ना। तो ये बाई डायरेक्शनल एक लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ मेरे से कोई पूछा, मैंने उसको जवाब दिया, तो पब्लिक बेटर वे में उसको कनेक्ट कर पाती है। उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे क्वेश्चन को पुटअप किया और इससे मुझे मेरा जवाब मिल गया, है yeah, ना। तो ये पॉडकास्ट वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसलिए मैं पॉडकास्ट के लिए मतलब हाईली फेवर में हूँ, और इसलिए मैं कभी भी डिक्लाइन नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास कभी भी कोई भी ऑप्शन आएगा तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। ये बेस्ट है, और बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब डेफिनेटली तुम ऐसे ऐसे जितने भी गेस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सबको तुम इनवाइट करो, अपने अपने इनपुट्स वो देंगे, और कंसिस्टेंटली हर वीक पॉडकास्ट डालते रहो, इसी तरह वीक में कंसिस्टेंट रहना है। तो मैं बस यही बोलूंगा, कंसिस्टेंट रहना है। और कंटेंट जो है, डेफिनेटली कंटेंट बनता है सिर्फ हमसे नहीं, हमारे साथ जो जुड़ते हैं उनसे भी हमारा कंटेंट अच्छा होता है। तो जो मेरी चीजें हैं वो शायद मैं बेटर वे में कर पाता हूँ जब मेरे साथ कोई क्वेश्चन करता है, एक डिस्कशन बन जाता है, जैसे आज का हमारा पॉडकास्ट हो गया। तो ये बेटर है हम हमारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम दोनों ग्रो कर सकते हैं। तो ये इसकी बात हो जाती है ना। तो बस यही एक एडवाइस मैं दे सकता हूँ, और इससे ज्यादा एडवाइस देने के मैं लायक भी नहीं हूँ, और yeah. ना ही अभी एलिजिबल हूँ। ऐसा नहीं है सर। आप इट्स मतलब मुझे लगता है कि आपसे भी कुछ अच्छे इनपुट मिल जाए मुझे, ताकि मैं भी ग्रो हो जाए। कि कुछ लोग बिल्कुल। बोलते हैं कि यार ये सब बकवास है, अब क्या कर रहे हो तुम, छोड़ दो ये सब, क्या ही कर रहे हो, अपना कुछ काम का देख लो कुछ ये। बट हम्म, मुझे तभी से भी मुझे इंटरेस्ट था कि कुछ करना है, कि लाइक एक पॉडकास्ट बनवानी है। आई बिल्कुल। डजंट नो कि हाउ टू स्टार्ट और वे टू स्टार्ट। तो हम्म, अभी हम्म, आप देखो, अब अपनी मतलब कुछ सेटअप लगाया आपने कि पीछे कुछ ग्रीन स्क्रीन, तो ये हम्म, सब मुझे हम्म, ज्ञान नहीं, आई एम जस्ट ग्रोइंग। इसलिए हम्म, मैं पूछ रहा था कि हाउ आई कैन ग्रो दिस चैनल। वही है, जैसे इवन अगर तुम मुझे भी अगर देखते हो, तो इवन मैं भी वो काम नहीं कर रहा हूँ जिस चीज में मेरी मेरी ट्रेनिंग है ना। या मुझे एज अ डॉक्टर एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा होना चाहिए था, या बट आई एम नॉट डूइंग दैट।
क्यों? बिकॉज दैट इज फ्रस्ट्रेटिंग टू मी। Yeah. वो ब्रांच इतना फ्रस्ट्रेटिंग है, और आप जान रहे हो कि आपका पेशेंट, यू कैन बेटर योर पेशेंट्स इन अ बेटर वे थ्रू लाइफस्टाइल एंड डाइटरी इंटरवेंशन। तो अगर आप अपने लिए पर्सनली उसका बेनिफिट लिए हो अपने फैमिली के लेवल पे, फ्रेंड्स के लेवल पे, देन डेफिनेटली आप ये सोचोगे कि मैं पब्लिक लेवल पे भी ये काम करूं। और पब्लिक लेवल पे ये काम आप तभी कर पाओगे जब आप सिस्टम से बाहर रहोगे। सिस्टम में रह के आप नहीं कर सकते इस काम को, है ना, क्योंकि वो गाइडलाइन के अगेंस्ट हो जाता है, और वहां पे फिर वो सब इशू हो जाता है कि आपको वो बाहर कर देंगे, फिर बोलेंगे कि आप यू आर नॉट फॉलोइंग माय प्रोटोकॉल, सो यू बेटर यू गो अवे, है ना। तो इसलिए मुझे ये सब काम करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरा जो पैशन है ना वो है पब्लिक हेल्थ। और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। वो मुझे अगर सोशल मीडिया पे थोड़ा बिहेवियर को एब्सर्ड करना पड़ेगा तो वो भी करूंगा, वो मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, है ना। तो मुझे एक्चुअली किसी से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट अब नहीं चाहिए। Yeah. मैं बस यही कह रहा हूँ, मुझे अपने काम को करने के लिए किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए कि मुझे क्या करना है। अब इस एज में तो एटलीस्ट मैं, मुझे कोई नहीं बता सकता कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरा गोल मुझे दिखता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और बहुत क्लियर है। तो अब अगर ये कोई बोलेगा कि तुमने फिर ये क्यों किया, वो क्यों किया, पढ़ाई तुमने या की ये की, और अभी तुम आजकल घर पे बैठे हुए हो यार, कुछ ना बाहर, तुम कितना अच्छा तुम हॉस्पिटल में काम कर रहे होते, लोग तुम्हें जान रहे होते, है ना। Yeah. तो वो भी कहीं ना कहीं लोग कहीं ना कहीं तो इंसल्ट ही कर रहे होते हैं ना, इस तरीके से बोल करके वो तुम्हें डाउन प्ले करते हैं तुम्हारे काम को भी। वो हालांकि वो देख रहे हैं तुम्हारे पोटेंशियल को, बट स्टिल दे विल से समथिंग दैट कैन अफेक्ट योर माइंड, और मीन्स इमोशनली ऑल्सो, है ना। Yeah. तो अफेक्ट करता है, बट यू हैव टू बी दैट स्ट्रांग, है ना। वो थिक स्किन्ड होना पड़ेगा, वरना ऐसी हमारी सोसाइटी है कि हम कर नहीं सकेंगे जो हम चाहते हैं। तो अगर तुम्हें तुम्हारा गोल दिखता है कि, और तुम्हें ऐसा लगता है कि यू शुड डू इट, देन यू शुड डू इट, है ना। और तुम्हें वैसे लोगों के पास जाना चाहिए जो तुम्हारे पैशन में तुम्हारे साथ जुड़े, जो तुमको सपोर्ट करे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें बोले कि ये छोड़ दो, वो करो, ये सब बेकार चीज है। ऐसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ। सर्किल को छोटा रखो, ये भी एक एडवाइस दूंगा मैं तुम्हें। सर्किल को बहुत छोटा रखना होता है, और जो मतलब सपोर्टिव होते हैं हर तरीके से ना, वही तुम्हारे लायक हैं, वही तुम्हारे आसपास होने चाहिए। ज्यादा लोगों से मत जुड़ो, वो कोई काम की चीज नहीं होती है, उससे नुकसान होता है उल्टा। तो सर्किल छोटा रखो, काम बड़े बड़े करो, है ना। काम एक्चुअली बड़ा ही करोगे जब सर्किल छोटा होगा तो। ये मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोशलाइज करने में और इससे मैं बिलीव नहीं करता हूँ, है ना। जब गोल तुम्हारा बड़ा होगा ना, तो थोड़ा सा तुम्हारा जो बिहेवियर होगा ना वो एंटी सोशल दिखेगा लोगों को। लोगों को लगेगा कि ये एंटी सोशल टाइप का बंदा है पर्सनैलिटी वाइज। पर उससे कुछ मतलब नहीं है ना, उससे क्या करना है। मैं अपने कैरेक्टर को वहां पे कहीं ना कहीं सोचूंगा, एक बिहेवियर पैटर्न को रखूंगा जिस तरीके से मुझे रखने चाहिए जब मैं किसी इंस्टीट्यूट में एक वर्किंग एक डॉक्टर हूँ। अभी मैं उस तरह से कुछ काम ही नहीं कर रहा हूँ ना, मैं एक सोशल मीडिया पे एक इन्फ्लुएंसर का काम कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ एक्चुअली। अगर सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट को मैं पुटअप कर रहा हूँ, तो वो मैं एज अ डॉक्टर नहीं कर रहा हूँ, मैं एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कर रहा हूँ प्राइमरीली। मैं आपके लिए डॉक्टर तब हूँ जब आप मुझे पे करते हो, है ना। तो जब तक आप मुझे पे नहीं किए हो, आई एम नॉट योर डॉक्टर। और जब मैं आपका डॉक्टर नहीं हूँ, तो आप मुझे कुछ नहीं बोल सकते हो कि मेरे पेशेंट हो, ताकि एज अ पेशेंट तुम मुझे बोल सकते हो कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो। अरे तुम मुझे पैसे दो, तब देखो मेरा बिहेवियर एंटायरली डिफरेंट होगा, क्योंकि Yeah. तुम अब मुझे पे कर दिए हो, और मैं तुम्हें एज अ डॉक्टर अब मैं तुमको ट्रीट करूंगा। अभी तो मैं बस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, क्योंकि तुमने मुझे पे नहीं किया अभी तक, है ना। तो इस तरह से कहीं ना कहीं कैरेक्टर वाइज तुम्हें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा, थिक स्किन्ड भी होना पड़ेगा, और अपने काम को जिस तरह कर रहे हो करते रहो। तुम्हारा जो पर्सनल अपना जो एक प्रोफेशनल जो एक एकेडमिक्स है ना, उसको भी अगर ध्यान में तुम रखते हुए कुछ काम करते हो तो वो कंटिन्यू रखो। अगर ये तुम्हारा हॉबी एज अ हॉबी तुम लिए हुए हो कि तुम्हें ये करना है पैशन वाइज, देन डेफिनेटली कंटिन्यू करना है। छोड़ने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है ना। ये कभी नहीं सोचना है इस तरह से। Yeah. So thank you, sir. It has been nice meeting with you. And once again, very thank you for coming out to SS podcast. Yeah, sure, sure. I will come. Even I will come for next time also. No problem. I don't have any problem. Yeah, sir. Thank you. Thank you so I will wait for your invite. much. Yeah, I really wait for a personal invite for you. You like we'll meet personal together once. Sure, sure, sure. Where are you now? Sure, I'm currently in Ahmedabad.
Okay, okay, okay. Yeah, you're doing your PhD there, na? Right. Yeah, 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 yeah. fine, fine.